سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے قیام امن کے لیے غیر معمولی کوششوں پر امریکی صدر کو مبارکباد دی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت اقتصادی بحالی، صنعتی توسیع اور پائیدار ترقی کے جامع ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ وزیر مذہبی امور نے پاکستانی عازمین حج پر زور دیا ہے کہ وہ مناسک حج کے دوران نظم و ضبط اور صبر کا مظاہرہ کریں۔ آج کوئٹہ میں چمن ریلوے پھاٹک کے مقام پر بم دھماکے میں 14 افراد شہید ہو گئے۔ بھارت کی ریاست منی پور میں قابض بھارتی حکومت کی نااہلی کے باعث خانہ جنگی کی کشیدہ صورتحال بدستور برقرار ہے۔ پاکستان کے نوجوان ایتھلیٹ مسعود خان نے پشاور سے اسکردو تک بغیر رکے دوڑ کر عالمی ریکارڈ قائم کرتے ہوئے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو قیام امن کے لیے ان کی غیر معمولی کوششوں اور اس سلسلے میں سعودی عرب، قطر، ترکی، مصر، متحدہ عرب امارات، اردن اور پاکستان کی قیادت کے ساتھ انتہائی مفید اور نتیجہ خیز ٹیلی فون رابطوں پر مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم نے ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ان رابطوں میں پاکستان کی نمائندگی کی اور وہ پورے عمل کے دوران ان کی انتھک کوششوں کو سراہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ رابطوں نے موجودہ علاقائی صورتحال اور خطے میں پائیدار قیام امن کے لیے جاری کوششوں کو آگے بڑھانے کے حوالے سے تبادلہ خیال کا مفید موقع فراہم کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان پوری سنجیدگی کے ساتھ قیام امن کی کوششیں جاری رکھے گا اور توقع ہے کہ پاکستان بہت جلد مذاکرات کے اگلے دور کی میزبانی کرے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان پائیدار امن، باہمی احترام اور علاقائی استحکام کی خاطر کی جانے والی تمام مخلصانہ کوششوں کی بھرپور حمایت کے لیے پرعزم ہے۔ آج سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ اجتماعی خوشحالی اور خطے سمیت دنیا کے امن و سلامتی کے لیے تنازع اور محاذ آرائی کے بجائے مذاکرات اور سفارتکاری کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ آج صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستان، سعودی عرب، ترکی، قطر، مصر، متحدہ عرب امارات اور اردن کی قیادت کے ساتھ ہونے والی اہم ٹیلی فونک گفتگو علاقائی امن، استحکام اور جلد سفارتی پیش رفت کے مشترکہ مقصد کے حصول کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ نائب وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کی قیادت اور مذاکرات و سفارتکاری سے وابستگی کو سراہتے ہوئے نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو اور پوری امریکی ٹیم کی مسلسل سفارتی کوششوں کی بھی تعریف کی، جن کے فعال کردار سے جاری مذاکرات میں اہم پیش رفت ممکن ہوئی۔ اسحاق ڈار نے ایرانی قیادت بشمول صدر مسعود پزشکیان، وزیر خارجہ سید عباس اراغچی اور اسپیکر محمد باقر قالیباف کے تعمیری رابطوں کو بھی سراہا اور امن کوششوں کی حمایت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ حکومت اقتصادی بحالی، صنعتی توسیع اور پائیدار ترقی کے ایک جامع ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے آج ہانگجو میں پاکستان چین بزنس ٹو بزنس سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ گزشتہ 4 برس کے دوران ملک نے معاشی استحکام حاصل کیا ہے اور بیرونی چیلنجز کے باوجود معیشت کا سفر اب ٹھوس بنیادوں پر آگے بڑھ رہا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ وزارت خارجہ نے بھی اپنے کردار کو بنیادی طور پر اثر نو متعین کیا ہے اور اقتصادی سفارتکاری کو خارجہ پالیسی کا مرکزی حصہ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان حکومتی سطح پر تاریخی تعلقات اب کاروباری سطح پر وسعت پذیر شراکت داری سے مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اب تک 300 سے زائد مفاہمتی یادداشتوں اور تقریباً 3 درجن مشترکہ منصوبوں پر دستخط ہو چکے ہیں، جن کی مجموعی مالیت $13 ارب سے زائد ہے، جبکہ مفاہمتی یادداشتوں کے باقاعدہ معاہدوں میں تبدیل ہونے کی شرح تقریباً 30% کے قریب ہے۔
वज़ीर मजहबी उमूर और बैन अल-मज़ाहिब हम आहंगी सरदार मोहम्मद यूसुफ ने पाकिस्तानी आज़मीन हज पर जोर दिया है कि वो मनासिक हज के दौरान नज़्म ज़ब्त, सब्र और आलमी क़ुव्वत के जज्बे का मुज़ाहरा करें। उन्होंने आज एक वीडियो पैगाम में पाकिस्तानी हुज्जाज को अल्लाह ताला का मेहमान बनने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर मजहबी उमूर ने आज़मीन हज को याद दिलाया कि वो पाकिस्तान के सफ़ीर भी हैं, इसलिए उन्हें मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा में क़याम के दौरान सऊदी क़वानीन और हिदायत पर सख्ती से अमल करना चाहिए। उन्होंने आज़मीन से अपने लिए, अपने अहले खाना और मुल्क के अमन व सलामती के लिए खुसूसी दुआएं करने की भी अपील की। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने आज़मीन हज को अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखने और पाकिस्तान मेडिकल मिशन की हिदायत के मुताबिक ज़्यादा पानी पीने की तलक़ीन की। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की मौसर सहूलतकारी से पाकिस्तान के मादनी शोबे में बैन अल-अक़वामी ताउन और वैल्यू एडिशन के नए इम्कानात रोशन हुए हैं। इस सिलसिले में पाक सॉल्ट कॉरपोरेशन और चीन नेशनल सॉल्ट इंडस्ट्री ग्रुप ने रॉक सॉल्ट के शोबे में तवील मुद्दती ताउन के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। मुआहदे के तहत कानकनी, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और तैयार मसनूआत की आलमी मंडियों तक रसाई के लिए ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। वज़ारत तवानाई ने मुआहदे की तकमील में कलीदी मुआवनत फ्राहम की। SIFC ने चीनी और पाकिस्तानी इदारों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके शराकतदारी में नुमायां किरदार अदा किया है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। कोयटा में चमन रेलवे फाटक के मकाम पर बम धमाके में 14 अफराद शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुआविन बराए इत्तलात शाहिद रिंद के मुताबिक शहदा में फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के 3 अहलकार भी शामिल हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कोयटा में दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मसम्मत की है। अपने अलग अलग बयानात में उन्होंने कहा कि दुश्मन अनासिर पाकिस्तान के अवाम को नुकसान पहुँचाने और आलमी अमन की कोशिशों से पाकिस्तान की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दुनिया को दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों का हकीकी चेहरा देखना चाहिए कि वो किस तरह अपनी मज़मूम कार्रवाइयों के जरिए आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को मुतासिर करने की नाकाम साजिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ऐसे बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले पाकिस्तानी कौम के अज़म को कमज़ोर नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी कौम मुश्किल की इस घड़ी में बलूचिस्तान के अवाम के साथ खड़ी है। बलूचिस्तान के वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने भी दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा है कि फितनाल हिंदुस्तान से वाबस्ता दहशतगर्द मासूम शहरियों, ख़वातीन और बच्चों को निशाना बना रहे हैं और ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से उनकी सफ़ाकियत ज़ाहिर होती है। लद्दाख में हेलीकॉप्टर के हालिया हादसे समेत मुतवातिर फ़ज़ाई हादसात ने भारतीय हवाबाजी की सलाहियत पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मकबूजा लद्दाख में भारतीय फौज का एक चीता हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में एक मेजर जनरल समेत 3 फौजी अफसर जख्मी हुए। ये वाक़या फरसूदा भारतीय फ़ज़ाई बेड़े को दरपेश खतरात की अक्कासी करता है। भारत की रियासत मणिपुर में काबिज भारतीय हुकूमत की नाअहली के बायस खाना जंगी जैसी कशीदा सूरत हाल बदस्तूर बरकरार है। भारतीय अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने हुकूमत की नाअहली और अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल को बेनकाब किया है। कुकी बरादरी ने शटरडाउन हड़ताल की कॉल दी है, जबकि नागा बरादरी ने भी मणिपुर की मरकजी शाहराहें बंद कर दी हैं। माहिरीन का कहना है कि भारतीय हुकूमत मणिपुर में नस्ली फसादात, कत्ल गारत और सड़कों की बंदिश के बायस पैदा होने वाले बहरान पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी ने एक बार फिर आलमी सतह पर इस हवाले से पाकिस्तानी मौक़िफ़ दुरुस्त साबित कर दिया है। अफगानिस्तान के बारे में बरतानिया के खुसूसी नुमाइंदे रिचर्ड लिंडसे ने BBC को इंटरव्यू में कहा कि दहशतगर्द गिरोहों के हाथों दूसरे ममालिक के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल रोकना होगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं जो खित्ते की सलामती के लिए संगीन खतरा हैं। पाकिस्तान के नौजवान एथलीट मसूद खान ने पेशावर से स्कर्दू तक बगैर रुके दौड़कर आलमी रिकॉर्ड कायम करते हुए कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। उन्होंने ये गैर मामूली चैलेंज सिर्फ 9 दिन में मुकम्मल किया और 800 किलोमीटर से ज़ायद का दुश्वार गुजार फासला तय किया। और अब मौसम।
महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में दिन के औकात में शदीद गर्म रहने का इम्कान है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्क का पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। आज रिकॉर्ड किया गया 22 बड़े शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद 33 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 39, कराची 35, पेशावर 36, कोयटा 31, गिलगित 24, मुजफ्फराबाद 29, मरी 21, जबकि श्रीनगर 24, जम्मू 40 और लेह में 4 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म ने क़याम अमन के लिए गैर मामूली कोशिशों पर अमरीकी सदर को मुबारकबाद दी है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत इक़्तिसादी बहाली, सनअती तौसी और पायदार तरक्की के जामे एजेंडे पर अमल पैरा है। वज़ीर मजहबी उमूर ने पाकिस्तानी आज़मीन हज पर जोर दिया है कि वो मुनासिक हज के दौरान नज़्म ज़ब्त और सब्र का मुज़ाहरा करें। आज कोयटा में चमन रेलवे फाटक के मकाम पर बम धमाके में 14 अफराद शहीद हो गए। इसके साथ ही खबरें खत्म हुई। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।